Okay guys, let's continue our discussion. Let's discuss advanced questions. So we have been discussing the other question वो cosine rule वाला है ना. तो उसका देखो मैंने उसका एक पिक मैंने आपको फॉरवर्ड किया था है ना, अपने ग्रुप में पोस्ट किया था. सो हमने लास्ट में वो कैलकुलेशन पार्ट में गड़बड़ कर डाला है ना. सो एनीवे लेट्स मूव ऑन. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 89 है ना. क्वेश्चन नंबर 89. तो ना इसका 84 का सिर्फ आंसर बी है. एक नेगेटिव वैल्यू आया था उसको हमने रिजेक्ट किया है. ठीक है. अच्छा 87 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 89. तो अपने पास क्या है, अपने पास है cos a 2 cos a upon a plus cos b upon b plus 2 cos c upon c is equal to a upon bc plus b upon ca. तो ये है अपने पास. We need to find angle A. We need to find angle A, right? So what do you think should be our approach? ये देखो यहाँ एंगल्स भी है और साइड्स भी है. रिमेंबर ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है. We need to find angle A, right? So यहाँ एंगल्स भी है और साइड्स भी है, right? So what do you think is the best approach? Angles to sides or sides to angles? What would be the best approach? कि कोसाइन रूल अप्लाई करें कि साइन रूल अप्लाई करें? याद है हमने एक क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c is a square plus b square plus c square upon 2abc. शायद हमने एक क्वेश्चन किया था समथिंग लाइक दिस है ना. cos a upon a cos b upon b cos c upon c, राइट. ये प्रूफ कैसे किया था हमने? बाय सिंपली अप्लाइंग कोसाइन रूल है ना. सो यू सी इस क्वेश्चन में आई थिंक द बेस्ट अप्रोच वुड बी टू अप्लाई कोसाइन रूल है ना. लेट्स कन्वर्ट एंगल्स इनटू साइड्स, क्योंकि साइड्स इनटू एंगल्स में करेंगे तो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट? sin a sin b sin c, फिर यहाँ sin a upon sin b sin c, sin b upon sin c sin a, it gets very complicated. So angles to sides would be better है ना कोसाइन रूल. 2 times cos a b square plus c square minus a square upon 2bc, माने ये हो जाएगा 2abc plus cos b c square plus a square minus b square upon 2abc. Same here, 2 times cos c a square plus b square minus c square upon 2abc. अच्छा let's take LCM here. So be careful about the LCM part here. ये देखो c तो पहले ही कॉमन निकलेगा तो a भी बचेगा. माने बेसिकली यहाँ BC है, यहाँ AC है. टू गेट ABC हम यहाँ A से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ B से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे b स्क्वायर. अगेन वी गेट ABC डिनोमिनेटर. लेकिन आपने नोटिस किया हर जगह 2abc है, तो विल डू वन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, देन यू सी यू कैन कैंसिल आउट 2abc एवरीवेयर. ठीक है. So 2b square plus 2c square minus 2a square plus c square plus a square minus b square plus 2a square plus 2b square minus 2c square is equal to 2a square plus 2b square. अच्छा तो ये देखो ये 2a square 2a square 2b square 2b square कटेगा और क्या बचेगा यहाँ? लेट्स सी. देखो 2b square और कोई b square के टर्म्स है क्या? माइनस b square which is b square. ये हो गया. लेट्स लुक एट c square. 2c square minus 2c square gets cancelled. 2c square minus 2c square gets cancelled. अच्छा प्लस c square बचेगा. एंड यू सी minus 2a square plus a square minus a square को हम लिखेंगे RHS की तरफ, प्लस a square हो जाएगा है ना. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? a square is equal to b square plus c square. Therefore triangle is, yes, therefore it is right angle. अच्छा कौन सा एंगल है? राइट एंगल. ऑब्वियसली एंगल A. ठीक है. This was a simple straightforward question. All we needed was this idea कि कौन सा रूल अप्लाई करें. ठीक है.
So 18 का आंसर 90. Let's look at question number 19 now. The set of all real numbers a such that a square plus 2a, 2a plus 3, a square plus 3a plus 8 are sides of a triangle. These are sides of a triangle. Now remember, you have been given three numbers here, and we want them to be sides of a triangle. Remember, sides of a triangle पे एक condition है. What is that? कि the sum of any two sides has to be greater than third side. So what we're gonna do is अच्छा sum of any two sides has to be greater than third side. इसका मतलब किसी भी दोनों का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए. तो किसी भी दो का मतलब वो तो तीन केसेस बनेंगे. Imagine कि say this is say x, this is y, and say this is z. इसका मतलब पहला कंडीशन x plus y should be greater than z. दूसरा कंडीशन y plus z should be greater than x. और तीसरा कंडीशन x plus z should be greater than y. तो तीन कंडीशन निकलेंगे, ठीक है. और वो तीनों कंडीशंस का ना रिमेंबर एंड है सबके बीच में. रिमेंबर देयर इज एंड in between all of them, in between all the conditions, ठीक है. So okay, so x plus y, so let's solve first condition. X plus y is greater than z. तो a के इसमें कटेगा. So 2a plus a is 4a minus 3a. A is greater than 5. So according to first condition, if x plus y is greater than z, we get a is greater than 5. ये condition number 1. ठीक है. Now let's look at condition 2. क्या condition 2? y plus z should be greater than x. So 2a plus 3 plus a square plus 3a plus 8 is greater than x. a square plus 2a, right? अच्छा a square कटेगा, okay. So 3a plus 2a 5 है, sorry 2a भी कटेगा. Ultimately 3a is greater than minus 11. a is greater than minus 11 by 3. ये condition 2 है. What about condition 3? इसके हिसाब से x plus z इन दोनों का एडिशन, a square plus 2a plus a square plus 3a plus 8 is greater than y. 2a plus 2a कटेगा, तो a square plus a square is 2a square plus 3a plus 5 should be greater than 0. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये देखो आपने नोटिस किया ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. रिमेंबर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है अपने पास. कौन सा मेथड है? इनइक्वालिटी. वेरिगर मेथड, राइट? वेरिगर मेथड. रिमेंबर वेरिगर मेथड के लिए वी ऑलवेज ट्राई टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक, है ना. क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करते हैं. रिमेंबर तो ये स्प्लिट हो रहा क्या? लेट्स चेक. 5 2s are 10. 5 into 2. So 5 plus 2 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए था, है ना. लेकिन यहाँ देखो 3a है, तो ये स्प्लिट तो नहीं हो रहा, है ना. तो रिमेंबर जब वो क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं होता तो इमीडिएटली स्विच हो टू बाबास मेथड. तो इसके लिए ना पहले d निकालो, ऑलवेज बेटर होता है. फाइंड d कितना आ रहा? b स्क्वायर माइनस 4 2s 8 5s are 40. d कितना आ रहा? माइनस 31 आ रहा है. d नेगेटिव है. हाँ ये देखो ये क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है. तो क्वाड्रेटिक कैसे खुलेगा? ये क्वाड्रेटिक ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. और d नेगेटिव है तो कुछ रियल रूट्स होंगे क्या इसके? उसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव है ना, पूरा ऊपर ही होता है. रिमेंबर इसका ग्राफ रिकॉल करो. a इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा ऊपर की तरफ. d नेगेटिव है तो कोई रियल रूट्स नहीं है. इसका मतलब क्वाड्रेटिक कंप्लीटली ऊपर ही लाई करता है. इट लाइज कंप्लीटली अबव x एक्सिस. इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव. इसका मतलब a का कोई भी वैल्यू डालो यहाँ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है a इज एनी रियल नंबर. देखो भाई क्वाड्रेटिक के वक्त क्या था. तो अल्टीमेटली देखो इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट का मतलब तीनों भी कहाँ राजी हो रहे हैं. देखो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है.
ए तो बिलोंग्स टू आर, कोई भी वैल्यू चलेंगे। इसके लिए ए -11/3 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए ए 5 से बड़ा होना चाहिए। तो क्लियरली इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन 5 होता है ना। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं -11/3। यहाँ एक ही स्प्रिंग है ग्रेटर देन 5, यहाँ देखो दो स्प्रिंग्स है ना, तो क्लियरली ए हैज टू बी ग्रेटर देन 5। देखो इक्वालिटी साइन नहीं है यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 90 का ए शुड बी ग्रेटर देन 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 93, जैसे क्वेश्चन नंबर 93 हमने लिख लिया है स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना। Okay, what's the question? If the sides of the triangle are 3 consecutive natural numbers and the largest triangle is twice the smallest triangle, तो remember अगर वो 3 consecutive natural numbers होते हैं तो sides exactly होंगे 4, 6। अगर sides AP में होते हैं, अगर sides होते हैं AP में and the greatest triangle is twice smallest triangle, तो फिर ratio रहेगा 4:5:6, right? अच्छा, सो डायरेक्ट आंसर है 93rd का डायरेक्ट आंसर है 4,5,6। अच्छा 95 भी क्या था हमने, 95 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर, लेट्स लुक एट द लॉजिक अगेन। अपने पास है b + c/11, c + a/12, a + b/13। we need to prove that cos a/7 is equal to cos b/90 is equal to cos a/25। ये दिया है और ये प्रूव करना है। तो लॉजिक क्या है बेसिकली इसका, है ना, इक्वल टू के, क्योंकि ये 3 वे इक्वालिटी है, तो ऑलवेज इक्वल टू के। इससे क्या मिल जाएगा अपने को, b + c मिल जाएगा, व्हिच इज 11k, c + a, a + b 13k। अच्छा व्हाट नाउ, इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, तीनों को ऐड करेंगे। अच्छा, तीनों को ऐड करने से कि LHS में सब 2-2 हो जाएंगे, सब 2-2 हो जाएंगे। देखो 2 times a + b + c, और RHS में 36k, इज इट? तो अल्टीमेटली वी हैव a + b + c व्हिच इज 18k। और आपने नोटिस किया इसमें से एक-एक करके अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो a मिल जाएगा व्हिच इज 7k, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने को b मिल जाएगा 6k, और 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो c मिल जाएगा व्हिच इज 5k। अच्छा, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें, अपने पास abc है। रिमेंबर, इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली कि cos a is to cos b is to cos c, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि cos a is to cos b is to cos c का रेशियो क्या है। माने आपने को फाइंड क्या करना है बेसिकली, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या फाइंड करना है, उनका रेशियो भी कैसे निकलेगा, एग्जैक्टली। रिमेंबर आपके पास तीनों की साइड्स है अपने पास, तो वी जस्ट अप्लाई cos है c b² + c² - a² 2bc मिल जाएगा ना, कोई नंबर आएगा, cos b का भी कोई नंबर आएगा, cos c का भी कोई नंबर आएगा, शायद से कोई कॉमन मल्टीपल कटेगा, तो अल्टीमेटली यू शुड बी एबल टू प्रूव कि का रेशियो इज 7, 19, 25, है ना। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस यू शुड बी एबल टू ट्राई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 98 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या है अपने पास, 2 साइड्स है अपने पास है, 2 साइड्स, a is 1 + √3 and b is 2 सेंटीमीटर, और इंक्लूडेड एंगल है इनके बीच का, तो अपने को फाइंड करना है अदर एंगल्स, अदर 2 एंगल्स। इसका मतलब एंगल a एंड एंगल b एंड आल्सो द थर्ड साइड यानी स्मॉल c। रिमेंबर, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दे रखा है और अपने को अदर 2 एंगल्स निकालना है, तो व्हाट व्हिच रूल डू वी अप्लाई, कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं, नेबर्स एनालॉजी। रिमेंबर 3 रूल है, एक है कोसाइन, दूसरा है नेबर्स एनालॉजी, और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। द सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अच्छा, तो नेबर्स एनालॉजी व्हाट डज इट से, tan
a minus b by 2 is a minus b, direct a minus b upon a plus b into cot c by 2 30, राइट। अच्छा √3 माइनस 1, cot 30 कितना होता है, √3 होता है। क्लियरली देखो आप यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हो, है ना, सही है। √3 कॉमन निकालो तो ये कितना होगा, √3 कटेगा। अच्छा अब इसका क्या करें, रैशनलाइज करें क्या, या आपने नोटिस किया अगर हमने √3 से डिवाइड किया तो ये 1 माइनस 1 बाय √3 अपॉन 1 प्लस, देखो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a माइनस tan b, है ना, लेट्स टेक 45 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, इसलिए 145 होता है, 1 बाय √3 30 होता है। दिस इज बेसिकली tan a माइनस b माने tan 15 डिग्री। अगर आप इसको रैशनलाइज किया ना तो अल्टीमेटली अगर आप रैशनलाइज करोगे इसको तो यू शुड बी एबल टू गेट 2 माइनस, है ना, रैशनलाइज किया तो 2 माइनस √3 आएगा। अब वैसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर माने ये जो है ये tan 15 है, इसका मतलब a माइनस b by 2 इज 50, a माइनस b इज 30। अच्छा एक ही तो कंडीशन है अपने पास, हाउ डू यू फाइंड a and b, we only have one condition unfortunately, now what do we do, हाँ क्योंकि एंगल सी है ना, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, एंगल सी है इसका मतलब a प्लस b भी है अपने पास which is 120। अच्छा ये क्या किया हमने पहले, आई थिंक आई आस्क्ड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। अच्छा देखो क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, he might have given us a plus b in the question, तो फिर नेबर्स एनालॉजी में आपको c ढूंढना होगा, है ना, बी केयरफुल। तो ऐड कर दोनों को, 2a is 150 तो a कितना होगा 75, अगर a 75 होता तो b should be 45, is it right? ओके देखो तीनों का सम हो रहा है क्या, 120 180, यस तीनों का सम 180 हो रहा है ना। अच्छा अब आप देखो थर्ड साइड ढूंढना है, रिमेंबर इफ यू हैव बीन गिवन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, कौन सा रूल वुड बी बेटर टू फाइंड थर्ड साइड, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, हाँ अभी तो सारा एंगल्स है, वी कैन गो फॉर एनी रूल, वी कैन, है ना, वी कैन गो फॉर एनी रूल वी वांट, जैसे कि अच्छा हाँ अब देखो जैसे आपने दो एंगल्स निकाल लिया तो सारे रूल्स खुल जाएंगे। इनफैक्ट आप पहले साइड सी फाइंड करके आप साइन रूल लगा सकते थे, we could have we could have found side C and then we could have applied sine rule also instead of going for neighbors analogy, but ठीक है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अच्छा अगर हमने साइन रूल अप्लाई किया, कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो ये sin 75 याद है क्या, अच्छा देखो a अपॉन sin a, sin 75 होता है √3 + 1 by 2 √2, isn't it? अच्छा b अपॉन sin b 1 अपॉन is equal to c निकालना है अपॉन sin c, sin 60, ठीक है ये वाला बेटर लग रहा है ना, 2 कटेगा तो c सिंपली √6। अच्छा इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते थे, यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर, ठीक है। या अगर आप कोसाइन रूल भी अप्लाई किया ना तो आंसर वुड हैव बीन वन एंड द सेम, है ना, यू वुड हैव स्टिल गॉट c as √6। This was a nice question. Let's move on to the next question. So the two angles are basically so 95 to that question 98. So two angles are 75 and 45 and C is 2. अब आते क्वेश्चन नंबर 105 पे, है ना, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 105। Consider the following statements concerning triangle ABC. इसमें देखो हाफ एंगल वगैरह है तो हम बात भी कर सकते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक लेजेंडरी क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
cos A cos B प्लस sin A sin B sin C इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos A cos B प्लस, अच्छा अगर ये sin A sin B होता ना बहुत अच्छा होता है ना, तो बीच में sin C आ गया, sin C नहीं होता तो ना क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता। मान लो sin C नहीं है, मान लो sin C नहीं है तो क्या होगा, what if there was no sin C, how will this question reduce to, this becomes cos A cos B plus sin A sin B is equal to 1। अच्छा ये क्या होता है लेकिन cos, yes cos A minus B 1 है। अच्छा cos 1 कब होता है, cos 0, इसका मतलब A minus B is 0, so A is equal to B, माने आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा आपने sin C कंसीडर ही नहीं किया, इसका मतलब sin C के जगह क्या वैल्यू यूज किया आपने, what 1, we didn't consider sin C, तो हमने बेसिकली क्या किया, we have considered sin C as 1, इसका मतलब एंगल से कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये 90 होता और ये दोनों इक्वल होंगे, each will be equal to 45। तो पूछा क्या उन्होंने पूछा a to b to c, इसलिए रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो पूछा गया है साइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वो साइन के रेशियो दे रखा है तो आप इसको साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो a to b to c इज एक्चुअली sin a to sin b to sin c, sin 45 1/2, ये भी 1/2 और ये 1 1:1 हो गया सर, हो गया हाँ सॉल्व हो गया। अच्छा साइन से नहीं है, अरे बढ़िया, लेकिन ये एक्चुअली प्रूफ नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे अपना क्या बोलते हैं फर्जी मेथड होता है अच्छा ओके, लेकिन इसका एक्चुअल प्रूफ क्या है वो देखते हैं। हमेशा ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं ना। अच्छा तो क्या है बेसिकली यहाँ ऑड वाली साइन सी है, ये ऑड वाला पार्ट है। अब एक काम करेंगे, साइन सी क्या होता है इसमें से 1 minus cos A cos B अपॉन, ये तो साइन से होता है, रीअरेंज करो cos A cos B होता है, sin A sin B नीचे। अच्छा ये हमेशा कैसा होना चाहिए, क्यों साइन हमेशा लेस देन इक्वल टू, पक्का श्योर, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा क्या sin A sin B से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनइक्वालिटी है तो कैन ए क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बस इतना बताना है कि क्यों किया मैंने, क्योंकि इनइक्वालिटी है। रिमेंबर इनइक्वालिटी होता है यू नीड टू मेक श्योर कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिमेंबर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब वो 0 से बड़ा और 180 से छोटा, तीनों के तीनों एंगल्स, माने कौन से दो क्वाड्रेंट्स उसमें साइन हमेशा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर लेकिन cos A cos B cos C कैन बी नेगेटिव, cos A cos B cos C नेगेटिव हो सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, यू विल बी गिवन 3 साइड्स, से 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, सम 2 3 4 2 3 4 आर से साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। आपको पूछा गया है कि कौन सा ट्रायंगल है ये, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल तो है, लेकिन एंगल्स के हिसाब से अक्यूट है ऑब्ट्यूज है कि राइट है, तो व्हाट विल यू डू, आप ऑल यू नीड टू डू इज कि इसमें से बड़ा वाला साइड कौन है, तो cos C निकालो, ये आया पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन, ट्रायंगल इज acute, good, triangle is acute, cos C आया 0, triangle is right, cos C आया नेगेटिव, obtuse, very important question है ये, है ना, बहुत ही important question है, अपना डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली, है ना। अच्छा ठीक है, ये आया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव, अभी बात की हमने। अच्छा तो उसको वहां लेकर जाऊंगा मैं, cos A cos B उधर, cos A cos B प्लस sin A sin B, लेकिन ये क्या होता है cos A cos B sin A sin B, cos A minus B हमेशा नहीं, ये तो पाप है, cos का हमेशा ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है, वो होगा तो मुश्किल से कितना होगा, वो 1 होगा, माने cos A minus B हो सकता है 1, इससे बड़ा नहीं। अच्छा ये तो हमने क्या हमने ले लिया डायरेक्टली ना, ये तो प्रूव किया हमने, अब तो हो गया ना सेम फंडा, देयरफॉर
a minus b is 0, so a is equal to, अच्छा a is equal to b है, लेकिन C90 कैसे प्रूव होगा? क्योंकि क्योंकि रिमेंबर ये इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा था ना, इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा था, इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब साइन C इज इक्वल टू, है ना? ये देखो हमने इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इनइक्वालिटी कभी जिंदा था ही नहीं। तो बेसिकली क्या है कि cos a minus b इक्वल टू 1 है, तो पीछे 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 गए हम, इक्वल टू 1 किया, तो अल्टीमेटली देयरफॉर sin c इज 1, इसका मतलब c 90 है, c 90 है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब each इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये एकदम लेजेंडरी क्वेश्चन है। ठीक है, सो विद दिस अपना एडवांस सेक्शन का डिस्कशन समाप्त। ठीक है, राइट, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,